Thank you. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. So, let us start our session with a short meditation. Sit back comfortably. Strengthen your spinal cord. A deep breath in, and as you inhale, feel the freshness, the newness, the blessings that are surrounding you. Wishes coming true. Feel yourself getting guidance from the divine. Feel the energy. Are you a working woman who's fed up of going to the एक छोटी सी बच्ची को रेस्क्यू किया। Feel yourself getting guidance from the divine. Yesterday, during meditation, we learned about two of the bodies that we are made up of. The number is 5. First layer is the Annamaya Kosh, that is made up of the food we intake, the 5 elements of nature. So affirm to take care of your physical health and improve your Annamaya. As we go deeper, we find the second layer of body, that is the Pranamaya Kosh. It is the energy, the life-giving force to our gross body. It is the prana. To feel this, let us take a deep breath in. Let the prana flow all through your body. And take up the air. Fill up to your lungs and feel the body getting oxygenated and energized. Third layer is the Manomaya Kosh. It is our mind. We are not only this body, but also our mind. So today, let's affirm that we will consume quality contents to improve our intellect, the ability to reason, to logic, by consuming quality content and reflection from the self, we can improve the health of the Manomaya Kosh. I'm so proud of you.
and I'm so blessed that all of you listen to our session and engage in this book reading session. This is also a great way to improve your memory. So pat yourself on the back and let's get started with our reading. Thank you so much. Om Shanti. Let me share the screen. I hope the screen is visible to all. Okay, sister, visible. Thank you, sister. So we have completed chapter 16, Your Subconscious Mind and Harmonious Human Relations. Today, we will look at the summary points of this chapter with profitable pointers in human relations. Your subconscious mind is a recording machine which reproduces your habitual thinking. Think good of the other, and you are actually thinking good about yourself. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रिकॉर्डिंग मशीन है। जो भी हम हैबिचुअली सोचते हैं, तो हम जब दूसरों का भला सोचते हैं तो एक्चुअली हम खुद का ही भला सोच रहे हैं। A hateful or resentful thought is a mental poison. Do not think ill of the another, for to do so is to think ill of yourself. You are the only thinker in your universe, and your thoughts are creative. अगर किसी के बारे में हेटफुल या रिजेंटफुल थॉट्स रखेंगे तो वो एक तरह से पॉइजन है, जहर है, मेंटल पॉइजन। हमारे माइंड में, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही थिंकर होता है और वो हम खुद होते हैं। जिस क्वालिटी की थिंकिंग हमारी चलती है, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो खुद ही करते हैं, पर हमारे थॉट्स क्रिएटिव होते हैं। दूसरों के बारे में अगर खराब सोचेंगे तो उसका मतलब भी होगा खुद के बारे में खराब सोचना। Your mind is a creative medium, therefore, what you think and feel about the other, you are thinking to pass in your own experience. This is the psychological meaning of the golden rule. As you put that man should think about you about them in the same manner. हमारा माइंड एक क्रिएटिव मीडियम होता है। जो हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हम फील करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, यही साइकोलॉजिकल मीनिंग है गोल्डन रूल का। तो हमें भी सबके बारे में अच्छा सोचना है। To cheat, rob, or defraud another brings lack, loss, and limitation to yourself. Your subconscious mind records your inner motivations, thoughts, and feelings. These, being of a negative nature, loss, limitation, and trouble, come to you in countless ways. Actually, what you do to the other, you are doing to yourself. किसी के साथ में भी अगर कुछ खराब करते हैं, उसको चीट करना या जो भी करना, तो वो करके हम खुद के साथ खराब कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। वो चीजें हमारे पास में ही लौट कर आएंगी। What you give to the world, you receive the same. The good you do, the kindness proffered, the love and goodwill you send forth will all come back to you multiplied in many ways. तो जैसे लिखा है कि हम खराब करते हैं तो हमारे पास भी खराब ही आता है। तो अगर हम अच्छा करेंगे, हम काइंड रहेंगे, लव, गुड, जो भी हम अच्छी अच्छी चीजें करेंगे वो भी हमारे पास मल्टीप्लाइड वे में आएगा और ज्यादा गुना अच्छी तरह से आएगा। You are the only thinker in your world. You are responsible for the way you think about the other. Remember, the other person is not responsible for the way you think about him. Your thoughts are reproduced. What you are thinking now about the other fellow. तो अपनी दुनिया में जो थिंकर है वो खुद अकेले ही है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी के बारे में हम कैसा सोच रहे हैं। और हमेशा ये याद रखना है
कि दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, हम उसके बारे में जो सोच रहे होते हैं। इसको थोड़ा और गहराई से अगर हम समझे, हम जब किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, इसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा सोच लिया। पर ऑथर कह रहे हैं कि दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे थॉट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि हम दूसरे के बारे में सोच क्या रहे हैं। ये हम अपना होमवर्क ले सकते हैं कि दूसरे के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। और फिर अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जो भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाले के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर हमारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट हमें ही करना होगा, साइलेंस में बैठकर या तो जर्नलिंग। Become emotionally mature and permit other people to differ from you. They have a perfect right to disagree with you, and you have the same freedom to disagree with them. You can disagree without being disagreeable. हमें इमोशनली मैच्योर होना है और परमिट करना है, सामने वाले को अलाउ करना है कि वो भी डिफर कर सकता है हमसे। जैसे सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो कोई डिसएग्री कर सकता है, दूसरे के पास में भी ये राइट है कि वो हमसे डिसएग्री करे, हमारे पास में भी सेम फ्रीडम है कि हम भी उनके साथ डिसएग्री करें। तो हम डिसएग्री कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। Animals pick up your fear vibrations and snap at you. If you love animals, they will never attack you. Many undisciplined human beings are just as sensitive as dogs, cats, and other animals. Animals भी हमारी vibrations को pick कर लेते हैं और उस according रहते हैं। अगर कोई हम प्यार करते हैं एनिमल्स को, तो वो हम पर अटैक नहीं करते। Your inner speech representing your silent thoughts and feelings is experienced in the reaction of others towards you. हमारी जो इनर स्पीच होती है, इनर स्पीच यानी जो हम अपने आप से बातचीत करते हैं, वो जो इनर स्पीच है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जो साइलेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है, जो हम किसी और से नहीं कहते, हमारे मन में जो कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, वो जो साइलेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स है वही रिप्रेजेंट होते हैं कैसे इनर स्पीच से। और ये कैसे एक्सपीरियंस किए जाते हैं इन द रिएक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स what the other person is behaving with you, तो हम उसके थ्रू ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि अगर कोई सेल्फ लव में बहुत हाई होता है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई अगर अंडर कॉन्फिडेंट वैसा रहता है, तो उस अकॉर्डिंग लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि लोग भी पिक करते हैं एनर्जीज को। ये सब लॉजिकली नहीं हो सकता है, लॉजिकली सोचा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली हम लोग पिक करते हैं दूसरों के वाइब्रेशंस को, जिस पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये एनिमल्स के साथ में एक्सपीरियंस किया जाता है, क्योंकि वो और भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। Wish for the other what you wish for yourself. This is the key to harmonious human relations. Harmonious human relations का की क्या है कि हम जैसा खुद के लिए विश करते हैं वैसा ही दूसरे के लिए भी विश करना है, वैसे ही दुआ रखनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो एनवियस नहीं होना है, जेलस नहीं होना है। हमें सोचना है कि अगर हमारी लाइफ में वो चीज अच्छी हो तो हमें कितनी खुशी हो, तो वैसे ही दूसरों को भी हमें खुशी ही बांटनी है। और जैसे अगर जेलसी वाले संस्कार आ जाते हैं, जलन वाले आ जाते हैं, तो इसमें खुद को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, क्योंकि हम सब अच्छी बुरी सारी चीजों से बने होते हैं। ये जितनी भी चीजें होती हैं, काम क्रोध अ, मोह लोभ अहंकार, ये सारी चीजें सबके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके परसेंटेज वेरी करते हैं। किसी के अंदर वो जलन वाली भावना बहुत ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, लेकिन होती सबके अंदर है। इसीलिए दूसरों के लिए भी एम्पैथी रखनी है, खुद के लिए भी एम्पैथी रखनी है। और अगर हमें अभी
ये नॉलेज मिली है, समझ आया है कि ये सोचना सही नहीं है दूसरे के बारे में, तो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करें, बहुत प्यार से खुद को समझाएं। तो उस हिसाब से हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। Change your concept and estimate of your employer. Feel and know he is practicing the golden rule and the law of love and he will respond accordingly. तो जो एम्प्लॉयर है कहीं पे अगर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर काम कर रहे हैं, उनके बारे में जो सोच है उसको बदले और ये जाने कि वो भी गोल्डन रूल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गोल्डन रूल क्या था कि हम जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं उसके लिए दूसरे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, और हम जैसा सोचेंगे वैसे ही सामने वाला भी हमारे बारे में सोचेगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है। लॉ ऑफ लव बिलीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शंस लेने हैं और फिर हमें रिजल्ट्स भी वैसे फॉलो अप वाले होंगे। The other person cannot annoy you or irritate you except you permit him. Your thought is creative. You can bless him. If someone calls you a skunk, you have the freedom to say to the other, God's peace fills your soul. कोई भी हमें अनॉय या इरिटेट नहीं कर सकता है जब तक हम उसे वो करने की परमिशन ना दे। हमारे थॉट्स क्रिएटिव होते हैं, हम किसी को ब्लेस भी कर सकते हैं, कोई कुछ भी करे कुछ भी कहे, लेकिन हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम उसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं। श्योर सोल, क्योंकि हमें जब एम्पैथी आ जाएगी तो कंपैशन आएगा, तो फिर हमारे मन में खुद का होगा कि इनके कोई पास्ट संस्कार होंगे या फिर ये भी परेशान है इसलिए इन्होंने कह दिया। तो अभी उनको क्या चीज की जरूरत है प्रेजेंट में उन्हें पीस की जरूरत है। तो गॉड की पीस इतने सो इनके सोल को फिल करे। जब हम इस तरह से प्रे करेंगे दूसरे के लिए तो वो फिर एक ब्लेसिंग बनेगी जो उनको भी मिलेगी और हमें तो मिलेगी। मानिए, love is the answer to getting along with others. Love is understanding, goodwill, and respecting the divinity of the other. किसी के साथ गेट अलोंग, अच्छे से मिलना जुलना, उसका आंसर हमें कैसे मिलता है? लव से मिलता है। और लव का मतलब क्या होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग बने, दूसरों को समझे, उनके बिहेवियर और ये सब पे उनको जज ना करें, लेबल ना करें, उनके प्रति हम अंडरस्टैंडिंग रहे, उनके लिए हमारे मन में गुडविल हो, रेस्पेक्ट हो, और सबके अंदर हम डिविनिटी देखें और उस डिविनिटी को हम रेस्पेक्ट करें, उनको लव, पीस एंड गुडविल, ये ब्लेसिंग्स देते रहे। तो यही क्योंकि हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन अगर हमें बनाना है तो ये सारी भावना होनी चाहिए। You would not hate a hunchback or cripple, you would have compassion. Have compassion and understanding for mental hunchbacks who have been conditioned negatively. To understand all these to forgive all. तो यहाँ पे हंचबैक और क्रिपल का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि अगर फिजिकल कंडीशन वैसी होती है तो हम उसे हेट नहीं करते हैं, हमारे मन में उनके लिए कंपैशन होती है, करुणा होती है उनके लिए। तो हमें दूसरों के जो मेंटल हंचबैक है, मतलब मेंटली भी या थॉट और उनके लिए ब्लेसिंग्स देनी है, तो वो ब्लेसिंग्स क्या करेंगी? उनके लिए मेडिसिन का काम करेंगी और फिर जल्दी हील हो पाएंगे। Rejoice in the success, promotion, and good fortune of the other. In doing so, you attract good fortune to yourself. दूसरों की सक्सेस, प्रमोशन में, उनकी कोई गुड फॉर्चून में हमें खुश होना चाहिए। जब हम ऐसे खुश होते हैं तो हम अपने लिए भी गुड फॉर्चून को अट्रैक्ट करते हैं। Never into emotional scenes and tantrums of others. Appeasement never leads. Do not be a doormat. Adhere to that which is right. Stick to your idea, knowing that the which gives you peace, happiness, and joy is right, good, and true. What blesses you blesses all. Exactly.
Every person in the world is love, and love is wishing for everyone what you wish for yourself. Health, happiness, and all the blessings of life. हम दूसरों को एक ही चीज ओव करते हैं और वो है लव। और लव का मतलब क्या होता है? जब हम दूसरों के लिए भी वही विश करते हैं जो खुद के लिए विश करते हैं। खुद के लिए हम क्या विश करेंगे? खुद के लिए हम गुड हेल्थ, हैप्पीनेस और ऑल द ब्लेसिंग्स, हमें दुनिया की, हमें इस जिंदगी की सारी खुशियां चाहिए, वही हम विश करेंगे ना। वैसे ही दूसरों के लिए भी हम जैसे खुद के लिए विश करते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी हमें विश करना चाहिए। Chapter is finished. We are moving to new chapter, chapter 17. How to use your subconscious mind for forgiveness. किसी को माफ करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट हम पॉज लेंगे और सोचेंगे कि हमें सबसे ज्यादा हमने अभी प्रेजेंट सिचुएशन में किसको माफ करने की ज्यादा जरूरत है, किसके ऊपर आपको थोड़ा एंगर है, थोड़ा ज्यादा ही, जिनके बारे में ज्यादा संकल्प चलते हैं दिन दिनों, वैसे किसी के बारे में सोचिए। अभी आप ये सोच के लिए करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम इनको पूरी तरह से पूरे मन से पढ़ और इस चैप्टर से हमें जो भी नॉलेज मिला इससे हम आगे भी अपनी लाइफ में लेकर जाएंगे। जब भी मन में वैसा कुछ आएगा पल पाए तो हम इस नॉलेज को यूज करेंगे और and this life principle is flowing through you. Please no favorites, God is life. And this life principle is flowing through you this moment. Loves to express himself as harmony, peace, beauty, joy, and abundance through you. This is called the will of God or the tendency of life. The life में कोई फेवरेट वाला पे नहीं होता है, जैसे हम किसी की लाइफ भगवान पे तो फेवरेट है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइफ है वही गॉड है। हमारी जो लाइफ है, पूरी लाइफ, कैसे भी सिचुएशन है, हम बीच बीच में ऐसा सोचते हैं ना कि भगवान लगता है हमसे रूठ गए, हमारी लाइफ में ऐसे फेजेस आ रहे हैं। करुणा सिस्टर, थोड़ा स्क्रीन को खाली स्क्रॉल कीजिए ना, अटक गया स्क्रीन। दिख रहा है अभी? स्क्रीन दिख तो रहा है लेकिन वो 18 पॉइंट में ही अटकी हुई है। ओ, अभी दिख रहा है? हाँ अब ठीक है। चैप्टर से जो हमारी लाइफ है वही गॉड है। और ये जो लाइफ प्रिंसिपल है जो हमारे थ्रू फ्लो हो रहा है इस टाइम, ये भी गॉड ही है। God loves to express himself as harmony, beauty, joy and abundance through her. हमारे थ्रू ये जो हार्मनी, पीस, ब्यूटी, जॉय, एबिलिटीज, ये जो जो फ्लो होता है ना, इसी से गॉड एक्सप्रेस करते हैं खुद को, अपनी प्रेजेंस को। और इसको हम कहेंगे विल ऑफ गॉड और डिपेंडेंसी ऑफ लव। If you set a resistance in your mind to the flow of life, this emotional condition will get stirred up in your subconscious mind and cause all kinds of negative conditions.
God has nothing to do with unhappy or chaotic conditions in the world. All these conditions are brought about by man's negative thinking. Therefore, it is silly to God for your trouble or sickness. कि गॉड जो है वो तो हमारी लाइफ में खुद को ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं थ्रू हैप्पीनेस, जॉय, एबंडेंस। लेकिन अपने माइंड में जो मेंटल ब्लॉकेजेस हम लेकर आते हैं, इस लाइफ के फोर्स को जो रोकने वाला काम करते हैं, वो हम खुद ही करते हैं। जब हम नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं, तभी हमारे लाइफ में अनहैप्पी और chaotic कंडीशंस होते हैं। और ये गॉड की वजह से नहीं हुए, वो हमारी खुद की वजह से हुए। इसीलिए कि जब हम गॉड को ब्लेम करते हैं ट्रबल और सिकनेस के लिए, तो हमें अपनी लाइफ का खुद इंचार्ज होना है, खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कभी कोई सिचुएशन है तो बैठ कर सोचना है कि मेरी कौन सी थिंकिंग की वजह से या फिर मेरे कौन से एक्ट की वजह से ये चीज आ रही है अट्रैक्ट होकर। उसके बारे में सोचना है, उसको फील करना है अपने मेंटल ब्लॉकेजेस। तब फिर हम देखेंगे कि जो लाइफ की फोर्स है वो हमारे थ्रू अच्छे से फ्लो करेगी। Many persons habitually set up mental resistance to the flow of life by accusing and reproaching God for the sin, sickness, and suffering of mankind. Others cast the blame on God for their pains, aches, loss of loved ones, personal tragedies, and accidents. They are angry at God and they believe He is responsible for their misery. तो जो लोग हैं वो मेंटल रेजिस्टेंस कैसे सेट करते हैं अपनी लाइफ की फ्लो में, जब वो एक्यूज करते हैं, इल्जाम लगाते हैं गॉड के ऊपर। जो जितने भी सिन होते हैं, पाप होते हैं, सिकनेस, सफरिंग होती है, लोग जो सफर कर रहे हैं, वो सब कुछ गॉड के वजह से होता है। दूसरे और ब्लेम करते हैं अपने दुखों का, अपने कष्टों का कारण, अपने किसी लव्ड वन को खो दिया है उसका कारण, जो पर्सनल ट्रेजेडीज आ रही है लाइफ में, जो समस्या है, उन सब का जिम्मेदार गॉड को ठहराते हैं। और गॉड से गुस्सा भी होते हैं और वो सोचते हैं कि गॉड ही रिस्पॉन्सिबल है उनके सारे दुखों का। As long as people entertain such negative concept about God, they will experience the automatic negative reactions from their subconscious mind. Actually, such people do not know that they are punishing themselves by release and give up all condemnation, resentment, and anger against anyone or any power outside themselves. तो जब तक लोग ऐसे ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट सोचते रहेंगे गॉड के बारे में, तो वो यही सब नेगेटिव रिएक्शंस भी एक्सपीरियंस करते रहेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली खुद को ही पनिश कर रहे हैं, अपने आप को ही पनिश कर रहे हैं। उनको सच देखने की जरूरत है, ट्रुथ देखेंगे, फाइंड रिलीफ एंड गिव अप कंडेमनेशन, रिजल्ट एंड एंकर। तो सच्चाई देखनी है, कैसे जो मेंटल ब्लॉकेजेस हुए हैं उनसे खुद को रिलीज कैसे करें, उनसे छुटकारा कैसे पाए, वो सोचना है। कैसे गिव अप कर पाएंगे अपने रिजल्टमेंट को, अपने मन में जो नेगेटिव बिलीव्स, जो नेगेटिव फीलिंग्स होल्ड करके, तो उसे कैसे गिव अप किया जाए, उसके बारे में सोचना है। अदरवाइज यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड इनटू अ हेल्दी, हैप्पी और क्रिएटिव एक्टिविटी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे हम मूव ऑन कैसे करेंगे, तो हेल्दी, हैप्पी, क्रिएटिव एक्टिविटी में कैसे जाएंगे। The minute these people entertain the thought of love in their minds and words, and then they believe that God is their loving Father who watches over them, cares for them, guides them, sustains and strengthens them. This concept and belief about God or the right principle will be accepted by their subconscious mind, and they will find themselves blessed in countless ways. Solution क्या निकल के आ रहा है? Word of love, पूरा ओशन ऑफ लव वैसा सोचना है, प्रेम का सागर,
जो सुप्रीम गॉड है वो एक लविंग फादर है, हमारे सुप्रीम पेरेंट है जो हमारे ऊपर हमारा ध्यान रखते हैं, हमें हमारी केयर करते हैं, हमें गाइड करते हैं, जीवन में राह दिखाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, परिस्थितियों में उनसे कैसे उभरना है वो बताते हैं। कि जब हम ऐसा सोचेंगे गॉड के बारे में, लाइफ प्रिंसिपल सोचेंगे कि गॉड ही लाइफ प्रिंसिपल है, इस बात को हम जब एक्सेप्ट करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो फिर हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस करेंगे इन काउंटलेस, इन अनगिनत वेज में हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल करेंगे। लाइफ ऑलवेज फॉरगिव्स यू। हम कल से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। यू कैन शेयर योर टेकअवेज नाउ। Thank you so much, Karuna sister, for the session. My takeaway is that what I think about others will come back to me in multiple times. So I know this must be a common thing, but still, whenever I listen to this many times, I feel that it is a new point for me. I'm again renewed because we hold something, some complaints for others, थोड़ा थोड़ा शिकायत भी जो रह जाता है मन में कि वो ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता। सम जो भी कुछ भी रहता है ना, स्पेशली वो आफ्टरनून में आते आते वैसा कुछ थॉट मेरे अंदर आता है, और मैं जब सेशन कर लेती हूँ तो वो रिमूव हो जाता है। So this is a very हेल्पफुल थिंग फॉर मी। आफ्टरनून में सेशन होता है तो जो थकावट सी होती है वो दूर हो जाती है। सो थैंक यू। My sister. ओम ओम शांति शांति निवाला सिस्टर, सिस्टर। आपका टेक बहुत अच्छा था। हाँ, आपका टे एक्चुअली जैसे आप अच्छी बातें सुनते हैं तो आपकी थकान अपने आप चली जाती है। तो इट इज वेरी पॉजिटिव रीडिंग में, यही तो जादू है। तो आज का मेरा टेक अवे है कि ये जो रिलेशनशिप्स के बारे में पॉइंटर्स बताए हैं आपके, देखो तो ऑथर ये बार बार कह रहा है कि ये कर्मों का फिलॉसफी वर्क करता है रिलेशनशिप्स में। जैसे कर्म आप करोगे आपको मल्टीप्लाई होकर आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप नेगेटिव करेंगे तो आपको ही नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन बार बार ये ऑथर समझाने की के बारे में, यू आर द अपनी जिम्मेवारी उठाए कि अच्छा सोचे, और दूसरे लोग जैसे वैसे हैं उनको स्वीकार करें, उनको बदलने की कोशिश नहीं करें, आपकी जिम्मेवार वो एक्चुअली। तो ये कर्मों का लॉस ही ये कह रहा है कि जैसे एनिमल्स या जो भी है कि उनका कोई सोच नहीं होता, वो अनकॉन्शियस ही रहते हैं। जैसे अगर आप प्यार से बात करते हैं और प्यार से कोई डॉग कैट को प्यार से दृष्टि देखते हैं, तो वो आपकी तरह लोग भी अनकॉन्शियस लिविंग करते हैं, उन्हें होता है। आपको रिटर्न में देते हैं, जैसे लाइक आईना होता है या फिर कुछ भी मैं ऐसे ही अनकॉन्शियस लिविंग करते हैं। तो उन डोंट ब्लेम देम। अगर आपको प्यार नहीं मिलता उनसे तो डोंट ब्लेम देम, इट इज यू, बिकॉज आप जो वाइब्रेट करते हो वो वहां से वैसे ही रिटर्न होता है। तो ये गोल्डन रूल्स बताए कि लॉ ऑफ लव, और या और ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैं तो
नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन इतना समझ में आया है कि जो लाइफ एनर्जी है, जो भी आपके जीवन में घटनाएं होती हैं, उसे स्वीकार करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। अगर आप स्वीकार नहीं करते, अगर आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है कि ऐसा हो वैसा हो, तो आप कंजेशन क्रिएट करते हैं। और इसके कारण से ही सारी बीमारियां, सारे तनाव, और अगर कोई नहीं मिलता ब्लेम को, तो गॉड को ब्लेम कर देते हैं। तो ये गलत है एक्चुअली। क्योंकि अगर जिस ये मल्टीफोल्ड होकर आता है, अगर आप किसी को भी भगवान को करोगे, तो आपको सोचो कि कर्मों का रिटर्न कितना खराब आ सकता है इसके ऊपर। तो एक्चुअली ये पाप है, भगवान को ब्लेम करना और उसको ड्रैग करना। तो ये मोटर ये जो सिखा रहा है, यही मेरा टेक अवे है। थैंक यू। ओम शांति। Thank you so much. Thank you, Ritu sister. Thank you, Anuradha sister. Karuna sister. Thank you for joining. See you tomorrow in entire session to guide the Thanks.